excited today, and it's been kind of a tradition that after every season of Big Boss Marathi, I usually like to host a party so that we all can come together and forget all the negativities in the Big Boss and remember all the positive things. So after the first season, we had a party. After the second season, we had another party. Third season के बाद obviously because of the pandemic, it was getting a little difficult to organize this event. But finally, this is the right time, and all three सीजन are coming together. इतना ही नहीं तो जो हिंदी में मेरे काफ़ी सारे फ्रेंड्स हैं हिंदी बिग बॉस में, थोड़े लोग बाहर आज काम कर रहे हैं लेकिन काफ़ी सारे यहाँ पे मुंबई में हैं, तो आज ज़रूर वो भी आएंगे. दे वुड लाइक, आई मीन, सो इट्स नॉट ओनली मराठी, it is for all my friends, everybody. Actually, in fact, everybody who's been a part of Big Boss is welcome to my party. I would love to have them all because this entire journey has really made us rediscover a lot of things about ourselves, and it is just a reminder for us कि वो जो discovery हुई है, जो rediscovery हुई है, it's kind of a remembrance, or you can call it a reminder for us to still be grounded and connected, because Big Boss is such a platform कि किसी को भी इधर से वो इधर ज़मीन पे ला देता है, और वो ज़मीन पे रहना बहुत ज़रूरी है. एंड दिस इज़ समवेयर it is for us to be together and be connected to each other and be grounded as well. Can we see you in the Hindi Big Boss? No, I think, you know what, I've already done the Marathi Big Boss, so I'm pretty happy with this entire journey. I think Hindi again, I don't think so, but I think I'm good with this one journey. It was really a beautiful journey for me, तो बहुत अच्छा लग रहा है. And first of all, yes, I want to definitely thank BPM for being the location partner and hosting this event with me. So thank you so much, BPM. And also I would like to thank Picture and Craft, my very good best buddy out here. Come here. Achha, she doesn't want to come. She's shying away. Parul is here, right here. Thank you so much, Parul, because without you, this event was simply not possible. And we also have very important partners this time. We have Scribble and Pop events, and I would like you to meet my friend. Come, come. So I have my friend Kunjal with me here, and she has curated the entire decor of this place, which is very amazing. I think it's beautiful and it's very classy. I loved it. So I think she's been an important part of my this party today, this evening as well. Thank you so much. How was your experience? Was it great? Okay, the evening is still about to start. I would definitely ask for that probably by the end of the evening. Yes. So thank you. Oh my God, कौन favorite था? Of course, I mean, see, everybody has their pluses and minuses. कोई चीज़ें किसी में अच्छी लगती है, कोई चीज़ें कोई में खटक जाती है. But I think हिंदी की बात करें तो obviously we had very good players this time. It's very important how you look at the game. कि आप इंसान अच्छा ढूंढ रहे हो या एक प्लेयर अच्छा ढूंढ रहे हो. Everybody has different mindsets to it. So I will not say take a particular name. अगर कोई मुझे इंसान अच्छा लगा है, as a human being अच्छा लगा है, किसी की स्ट्रैटेजी अच्छी लगी है, किसी का बर्ताव अच्छा लगा है, so it is very different. I will not like to name one person because everybody is very different in their own way and everybody is very special, and that's the reason they are in Big Boss. It's not an easy game. बहुत आसान नहीं है यहाँ रहना, वो भी इतने दिन. तो everybody is unique in its own way. Thank you. Yes, yes. ये ना त्या फोटो आई थिंक. Together. Ma'am, please join us. हम दोनों का ही लेंगे. He's been an important support for me. Shift one step. Thank you. So guys, let me introduce you. This is Sushant Shelar, a very dear friend of mine. रोल के लगे. Oh, rolling us in. रोलिंग है. Oh, and he's been a very important support for me while I
finalist for sure, but for some particular reasons he had to leave the show in between. But due to health reasons, yes. But but he has supported. He stood by my side, rock solid, and was supporting me from outside. So thank you so much, Sushant. I still remember. मुझे याद आ रहा है, I know, I remember all those moments that you were really working hard and you were out and you were really doing everything that you could do and wanting me to win. Thank you so much, and thanks to you, because of you I think I was there in the finale as well. Thank you. So, what do you want to say about the party? कुछ नहीं, बहुत खुशी हो रही है कि 3 साल के बाद हम सारे लोग मिल रहे हैं। एक तो 2 साल का लॉकडाउन का पीरियड था, वो सभी के लिए टफ था, और ये पार्टी जो है ये एक बहाना है। लेकिन स्मिता गोंदकर ये जो कुछ भी अरेंज कर रही है पिछले 3 सालों से, वो सिर्फ वही कर सकती है। तो आई एम वेरी हैप्पी, सबको मिलने के लिए बहुत तरस रहा हूँ। तो मुझे लगता है कि आज की शाम बहुत रंगीन होने वाली है। Thank you so much, sir. थैंक यू। बिग बॉस में तो काफ़ी सारी चीज़ें होती है, काफ़ी सारे एक्सपीरियंस होते हैं, लेकिन टास्क अगर खेलने को ना मिले तो बहुत ही मुश्किल होता है। लेकिन बिग बॉस में अगर कोई मेरा सबसे ज़्यादा करीबी दोस्त है तो वो स्मिता गोंदकर है, और वही मतलब मैं आपको इस बहाने बताना चाहूँगा। थैंक यू। नॉर्मली मराठी बिग बॉस से हिंदी बिग बॉस में काफ़ी जाते हैं, क्या आपको हिंदी बिग बॉस में हम देख पाएंगे? जी, मैं बहुत खुशी है, मैं मराठी बिग बॉस में पार्टिसिपेट था और मैं एक ही बिग बॉस से खुश हूँ। अभी मैं बिग बॉस में नहीं जाना चाहता। थैंक यू। मुझे नहीं लगता ये कोई और कर सकेगा स्मिता के अलावा। आई थिंक शी इज़ अ वेरी प्योर सोल एंड शी इज़ अ वेरी गुड सोल, एंड ये थॉट भी किसी के दिमाग में आना बहुत बड़ी बात है, और ऊपर से उसको करके दिखाना, इट्स नेक्स्ट लेवल। सो आई थिंक हर साल वो पार्टी रखती है, जैसे सेकंड सीज़न के लिए भी रखी थी, अब ये थर्ड सीज़न है, तो थर्ड सीज़न में तीनों सीज़न के लोग हैं। हम भी काफ़ी कम मिले हैं, मैं तो थर्ड सीज़न में गई थी अंदर, बट ये जो वो मौका देती है एक दूसरे को पहचानने का, घुल मिलने का, आई थिंक ओनली स्मिता कैन डू इट, बिकॉज शी इज़ अ लवली पर्सन एंड आई जस्ट लव हर। कोई ऐसी मेमोरी जो आप शेयर करें? यस ऑफ कोर्स, माय सीजन वाज द फर्स्ट सीजन, पहला सीजन था, और इस सीज़न में अगर मुझे कुछ मिला है तो ऐसे 2 दोस्त कमाल के मिले जो ज़िंदगी भर मेरे साथ रहेंगे। उसमें से एक है स्मिता ऑफ कोर्स, और दूसरा आस्था। What do you think बिग बॉस मराठी और हिंदी बिग बॉस में क्या डिफरेंस है अपार्ट फ्रॉम लैंग्वेज? गेम इज़ द सेम ओनली, आई डोंट थिंक सो गेम इज़ डिफरेंट। दोनों जगह गेम सेम ही है, खाली लोगों का तरीका उसे खेलने का अलग है, क्योंकि यहाँ महाराष्ट्रियंस होते हैं तो मराठी लोग होते हैं, तो मराठी होता है, अब हर किसी के इस मराठी लोगों के सोचने का तरीका अलग है। वहाँ मतलब नॉर्थ से भी होते हैं, साउथ से भी होते हैं, गुजराती तो हर इंसान अलग अलग प्रांतों से आता है, तो सोचने का अलग, तो दे रिएक्ट डिफरेंटली। सो इसलिए वो गेम बहुत अलग दिखता है। क्या आपको बिग बॉस हिंदी एक्सप्लोर करते हुए देख सकते हैं आप आने वाले, और क्या हम आपको बिग बॉस में देख सकते हैं बिग बॉस हिंदी की? अभी ऑलरेडी जब मैं गेम जानती हूँ, मैं गेम समझती हूँ, मुझे पता है गेम कैसे खेलना, वो बेवकूफ़ थोड़े मुझे वापस बुलाएंगे। So see you, bye. Smita's party is always special. When we came out of Big Boss, even then also she had hosted a party for us. She has this such a sweet gesture that she makes every year, makes it a point to bring all of us together. Memories are of course coming back because our season seems like it happened ages ago because of the lockdown, but now all of us are going to meet today. We're just going to have fun. That is all I'm looking forward to. बिग बॉस मेमोरी you like to share that always there in your heart? The best memory that I can remember from my season is when I was standing on that podium where the whole journey of our Big Boss season was shown to me, and then when Big Boss praised me and said that the house and Big Boss, whom I had considered as a father figure, would never forget a daughter that he got in that season. I think when he said that, that was very emotional for me, and that's absolutely memorable for the rest of my life. Now that the kind of response Big Boss Marathi is getting, initial stage the Big Boss Marathi was not getting that kind of. Now you were the part of that.
there's a difference between 2 consecutive seasons of language. Let it be Marathi or Hindi or Tamil or any language that Big Boss happens in. The place, the space, the home, the house is made of the people it consists. So वहाँ पे जो लोग होते हैं, जो 15-17 लोग वहाँ पे रहते हैं, वो सीज़न बनाते हैं, इसलिए हर सीज़न अलग होता है, हर सीज़न इंटरेस्टिंग होता है और एंटरटेनिंग होता है. थैंक यू सो मच. हम लोग साथ में भी आ सकते हैं ना. हाँ. बिग बॉस रीयूनियन काफी टाइम से हम वेट कर रहे थे. आज रीयूनियन में शामिल किस तरह से एक्साइटमेंट है? एक्चुअली बिग बॉस सीज़न 3 में हम थे और 3 के जो कंटेस्टेंट हैं हम 2-3 बार मिले हैं, लेकिन जो फर्स्ट सीज़न है, सेकंड सीज़न है, उनको सिर्फ हमने टीवी पे देखा है या फिर हम कभी मतलब मिले नहीं है. तो ये रीयूनियन जो है वो बहुत अच्छा है और हमें भी इनवाइट किया, तो स्मिता जी ने जो एक अच्छा गेट टुगेदर रखा है, तो हम बहुत खुश है कि हम सभी इकट्ठा होंगे और आगे भी जो है वो जो मिलकर आगे कांटेक्ट में रह सकते हैं. मैं भी अभी सीज़न 3 में थी. थोड़ा लाउड. नहीं नहीं ओके ना. सीज़न 3 में थी और फर्स्ट और सेकंड सीज़न के जितने भी कंटेस्टेंट्स हैं वो सब एक्चुअली मेरे फ्रेंड्स थे, क्योंकि मैं सेम लाइन में काम करती हूँ. ये तो बाहर से हम लोग तो मिलते रहते थे, हम लोगों की बातें भी होती थी. लेकिन ये था कि थर्ड सीज़न में जब मैं गई और मैंने देखा कि एक्टर्स बहुत कम हैं और कोई मॉडल है, कोई मतलब जैसे जय था, विशाल था, तो बाहर से आए हुए मुझे सब नए थे मेरे लिए. लेकिन ये जो मेरे पुराने जो दोस्त थे उन्होंने मुझे कहा था अंदर कैसे रहना है, क्या करना है, लेकिन मज़ा आया. और स्मिता ने ये जो पार्टी आज अरेंज की है, तो मुझे बड़ी खुशी हो रही है कि ये इस मौके पे आज हम लोग फर्स्ट और सेकंड सीज़न के सभी लोगों को मिल सकते हैं और हम गेट टुगेदर कर सकते हैं. ओके मैम, सोशल की बात कर रहे हैं. सोशल में आप काफ़ी मंदिरों के लेके काफ़ी मदद कर, उसके विचार किस तरह से विचार आते हैं? मैं एक सोशल वर्कर हूँ और जेंडर इक्वालिटी, वुमेन एम्पावरमेंट के लिए काम करती हूँ और जिस तरह से काम किया है, इसीलिए जो देश में एक एग्रेसिवली में काम करती हूँ, इसीलिए बिग बॉस में भी बुलाया गया. और मुझे एक अच्छा लगा कि ये सब जो है वो एक्टर एक्ट्रेस इसमें थे, लेकिन इस बार सोशल वर्कर भी उन्होंने बुलाया था. और जब सीज़न 3 में हम गए तो बहुत अच्छा थीम भी उन्होंने किया था, सब महिलाओं को लेकर थीम उन्होंने की, तो बहुत अच्छा लगा. अच्छा एक्सपीरियंस है. बहुत लोग कहते थे कि बिग बॉस एक स्क्रिप्टेड शो है, लेकिन हम जब वहाँ पे गए तो पता चला कि ये पूरा रियलिटी शो है. आगे कुछ होता है ये हमें भी नहीं पता चलता है और कुछ हम वहाँ पे छिपा भी नहीं सकते. हम जैसे हैं वैसे वहाँ पे दिखते हैं और वो अच्छा लगा कि लोगों के यहाँ पे हम 24/7 हम जैसे हैं वैसे पहुँचे, इसलिए वो बिग बॉस का जो प्लेटफॉर्म था तो वो हमारे लिए बहुत अच्छा था. थैंक यू वेरी मच. ओके. We are almost meeting after 2 years, after lockdown, after corona, after everything. So we are so much excited, and all the memories are coming up in my mind, that what we were enjoying and what we were suffering from, and I'm eagerly waiting for next season. So let's see, let's hope for the best. बिग बॉस मेमोरी would you like to share? Actually, there are so many memories, but actually there are so many tasks, but क्या share करूँ मैं? Actually, there is so much of mess in my mind, but every memory of Big Boss was very wonderful. We learned something, and we experienced something new. So everything was so special. Whether it was negative, it was just there to teach us something, and whether it was positive, so it was just to enjoy over there. So everything is so special. Okay, so if you want to pick any difference between Big Boss Hindi and Big Boss Marathi, what it is? Apart from Actually, language. there are actually so many differences. If you observe that Marathi crowd or Marathi Big Boss was quite aggressive. If you can
can understand. मतलब there was in Hindi, you know, even if someone touches like this, तो they call it a big boss, ये violence कर रहे हैं, ये ऐसा कर रहे हैं. पर मराठी में it was like so much of aggressiveness was there, and no one was ready to cool down or to calm down. And somewhere this aggressiveness was necessary also, and that was the thing which was there to, you know, differentiate the Hindi Big Boss and Marathi Big Boss. It was good also, it was bad also, but that was the difference. Okay, so now you are part of Big Boss Marathi. So if you get a chance for the Big Boss Hindi, so you'll go. I'll have to think a lot about it, you know, because when I came out of the Big Boss, now the reason was not that audience disliked me. Actually, my hand was fractured because of the violence happened in the house, and that's why I was so scared that I didn't want to go back. So if I'm sure that no kind of violence is going to happen, then I could think about it. But if there is such kind of crazy aggressiveness, then I don't think so. I will take a chance. Okay, so apart from Hindi Big Boss, is there any reality show you would love to explore? Apart from that, Khatron Ke Khiladi is very nice show actually. It is that show is good for aggressiveness. Big Boss show is not for that physical violence. So yes, for something different, if I want to explore, then Khatron Ke Khiladi would be the nice show. Thank you so much. Thank you. यार मैं तो हर साल अटेंड करता हूँ, वैसे भी स्मिता बुलाती रहती है और बहुत अच्छा लगता है जब हम बिग बॉस के न्यू कंटेस्टेंट से मिलते हैं और एक अच्छा रहता है कि हम पुरानी यादें भी ताज़ा करते हैं लोगों के साथ और जो नए लोग होते हैं वो भी अपनी एक्सपीरियंस बताते हैं। बिग बॉस की बात करें मराठी बिग बॉस की स्पेशली क्या कुछ ऐसा देखते हो जो काफ़ी स्पेशल है हिंदी बिग बॉस की अलग? मराठी बिग बॉस में सबसे पहले तो यार ये महाराष्ट्र को भी कनेक्ट करता है। अभी मैं हिंदी बिग बॉस से हूँ बट मैं मराठी भी देखना इसलिए पसंद करता हूँ, मुझे अच्छा लगता है कि हाँ कुछ मराठी सीखने को भी मिलती है आगे काम आएगी और नेचर थोड़ा सा डिफरेंस होते हैं सबके। जैसे अभी हिंदी बिग बॉस में थोड़ा सा एग्रेसिव होते तो यहाँ थोड़ा काम से भी खेलते, थोड़ा आराम से ये लोग खेलते हैं, बहुत अच्छा लगता है। जिस तरह से बिग बॉस हिंदी की मैं बात करूँ काफ़ी अच्छी जर्नी थी, काफ़ी कमाल की जर्नी थी। उसके बाद कभी आपको ऐसा मौका मिला था कि हम फिर से आने का? नहीं यार, बिकॉज बिग बॉस एक बार करना था, कर लिया। अभी रिसेंटली बहुत सारे प्रोजेक्ट हैं, अभी नेटफ्लिक्स कर रहा हूँ मैं, जमुना पार, गुराली कांड जो दिल्ली के 13 लोग एक साथ जो जिनने फांसी लगा ली थी उसमें मैं लीड कर रहा हूँ। तभी ऐसे कंटिन्यू प्रोजेक्ट चल रहे हैं। तो अमेजॉन प्राइम के 9 सीज़न साइन किए हैं, वो चल रहा, आता है कॉल आता है, कॉल आते रहता है रियलिटी शो के लिए, बट अभी फ़िलहाल के लिए एक्टिंग में मूव कर रहा है। ऐसा कोई रियलिटी शो जो आप करना चाहो बिग बॉस के अलावा? बहुत सारे अलग अलग रियलिटी। बिग बॉस के बाद अगर कहीं जाना चाहूँगा तो खतरों के खिलाड़ी। थैंक यू सो मच। अच्छा इनिशिएटिव है एक्चुअली, बिकॉज हम सब एक दूसरे को जानते हैं, 3 सीज़न हो चुके हैं, पर कभी ऐसी सबसे मुलाकात हुई नहीं। एंड बीच में जो भी सारे कोविड रिस्ट्रिक्शंस थे तो और भी मुलाकात होना मुश्किल था। बट आज व्हेन रिस्ट्रिक्शंस आर नॉट देयर, वी आर अलाउड टू मीट, वी कैन हग, वी कैन ग्रीट। आई थिंक आज सब लोग हम यहाँ पे मौजूद हैं, तो आई थिंक इट्स रियली ग्रेट फीलिंग।
यू नो बिग बॉस हैज़ बीन अ वेरी फैसिनेटिंग राइड एंड हर एक की अपनी अपनी जर्नी हम यहाँ पे एक दूसरे से बात कर रहे हैं, डिस्कस कर रहे हैं एंड अपने ही लोगों को दोबारा एक बार यहाँ पे मिलना बहुत ही खुशी की बात है। बिग बॉस मराठी की मैं बात करूँ तो क्या कुछ ऐसा स्पेशल आपको नजर आता है जो बिग बॉस नजर नहीं आता है? बिग बॉस हिंदी में नज़र नहीं आता पता नहीं यार, मैं बोल नहीं सकता हूँ बिकॉज बिग बॉस हिंदी मैंने अभी तक किया नहीं है, बट आई थिंक व्हाट्स ऑलवेज स्पेशल अबाउट मराठी और बिग बॉस मराठी इज़ दैट बीइंग अ महाराष्ट्रन आई कुड से कि मैं लोगों को रिलेट कर सकता हूँ, लोग हमें रिलेट कर सकते हैं। सारे तीनों के तीनों सीजन्स बहुत ही फैंटास्टिक हुए हैं एंड आई थिंक एक डिग्निटी के साथ डिग्निटी मेंटेन करके सारे तीनों सीजन्स सफलता से कामयाब हो चुके हैं एंड आई थिंक महेश मांजरेकर एन इनक्रेडिबल होस्ट अलॉन्ग विद सलमान खान इन हिंदी। सो आई थिंक मैं कंपेयर तो नहीं करूँगा, लेकिन आई थिंक मेरे बीइंग अ महाराष्ट्रन मेरी जो जर्नी थी बिग बॉस मराठी में वो काफ़ी मज़ेदार थी, बढ़िया थी। तो आई थिंक वेल दैट्स अबाउट इट। मैंने एक्चुअली ये सोचा तो नहीं है, बट आई थिंक येस, कभी अगर एक ज़िंदगी में ऑफर आती है तो आई थिंक इट ऑल डिपेंड्स अप टू द सर्कमस्टांसेस दैट टाइम कि मैं कौन सा शो कर रहा हूँ, क्या नहीं कर रहा हूँ, तो वो सारे कैलकुलेशंस पे डिपेंड करता है कि मैं हिंदी करूँ या नहीं। बट आई थिंक इट इज़ एन इनक्रेडिबल प्लेटफॉर्म फॉर एनी एक्टर और एनी इंडिविजुअल हु वांट्स टू मेक अ नेम। सो आई थिंक या आई माइट डू इट। रीयूनियन पार्टी आज आप हिंदी में भी थे, मराठी में भी, काफी जलवा था दोनों में। आज रीयूनियन पार्टी किस तरह से देखते हैं? आपने देखा सर? स्मिता जो है ना मेरी बहुत अच्छी दोस्त है, उसने इन्विटेशन दिया है मुझे तो मुझे आना ही पड़ेगा, बराबर है। काफी कमाल की जर्नी थी बिग बॉस मराठी में। कोई ऐसी मेमोरी, कोई ऐसी बातें जो आप शेयर करना चाहते हैं? आप लोगों ने तो देखा है ना सबने, आप लोगों ने तो देखा है ना सबने। फिर मुझे ऐसा लगता है कि आप सब बस स्टेट का क्या बोलते हैं कि स्टेट का मीडिया है क्या? मैंने कितने गुल खिलाए हिंदी में आपको पता नहीं है? फिर क्या डिफरेंट आप देखते हो मराठी में बिग बॉस और हिंदी में बिग बॉस में? क्या फर्क आपने देखा? क्योंकि आपने दोनों बिग बॉस देख चुके हैं, कोई ऐसी फर्क जो मुझे 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 ऐसा लगता है कि जो भी कंटेस्टेंट थे तो मराठी वाले ना थोड़ा ज़्यादा नखरा करते थे और मुझे ज़्यादा प्यार जो मिला वो हिंदी में मिला, क्योंकि एज ए कॉन्टेस्टेंट जैसे भी राखी आई तो उसने मुझे दादा बोल दिया, तो करण ने भी दादा बोल दिया, जो भी लड़कियां थी अंदर और जो भी जेंट्स थे वो सब मुझे दादा ही बुलाते थे। इधर नखरे बहुत ज़्यादा करते थे मराठी वाले। हाँ, उनको पता चल गया है कि अभी मराठी का स्टार कौन है, मराठी इंडस्ट्री में स्टार कौन है। हिंदी में बात करूँ तो करण से काफी बातें हुई बिग बॉस सीजन के बाद, तेजस्वी जीती शो। नहीं, मुझे निशांत ने कॉल किया था कि शमिता का बर्थडे है, लेकिन उस दिन मैं सांगली में था, तो सांगली से मुंबई में आना और 1-2-4 घंटे में नहीं हो सकता था। और एक रिलेशन जो अच्छे बने हैं, क्योंकि शमिता के और मेरे कुछ दंगे भी हो गए थे ना, तो मैं बोला कि नहीं जाना है मुझे, चलो। लेकिन स्मिता जो है ना अपनी, ये पहली लेडी है जिसको पता था कि मैं बिग बॉस मराठी में आ रहा हूँ, तो उसने मुझे बोला था कि आप बहुत ज़्यादा स्टार बनोगे और गुल खिलाओगे, और मैंने खिला दिए। प्रतीक सेकेंड आई, तेजस्वी पहली आई, काफी बातें हुई कि प्रतीक जीतने चाहिए थे वो शो। आपको किस तरह से डिजर्विंग लगती है तेजस्वी? मुझे तो ऐसा लगता है कि वो जो बायस्ड रिजल्ट है उसका, जब मैं बोला कि वो शमिता को जिताना चाहते थे, मैंने बोला आपको पता होगा कि अपना स्टेट मीडिया जो है, जो भी अपने चैनल है उस पर मैंने बात की थी, तो जैसे ही मैंने मेरे दिल खोल के बातें की कि क्या उधर पंगा हुआ था सलमान का और मेरा, वो ये सब, तो उन्होंने ये बायस्ड कर दिया कि महाराष्ट्र की लड़की जीते। पहले तो वो शमिता को जिताना चाहते थे, वो मुझे पता है। हाँ, और उसने जाके प्रतीक को भी नहीं जिताया, करण को भी नहीं जिताया। अगर देखा जाए तो करण भी डिजर्विंग था और प्रतीक भी डिजर्विंग था, क्योंकि पूरे 100 दिन उन्होंने निकाले थे अच्छे से, और एज ए इंसान वो बहुत अच्छे हैं दोनों भी, करण और ये प्रतीक। काफी कंट्रोवर्सी हुई आपकी में हिंदी
बात कंट्रोवर्सी नहीं हुई है, कंट्रोवर्सी का मैटर नहीं रहता कि भाई आप कोई क्रिया करोगे, आप कुछ बोलोगे। अगर आप मुझे दादा बोलते हो तो मैं कुछ भी नहीं बोलूँगा। अगर मुझे आप तिरछी नज़रों से देखते हो तो मैं आऊँगा फिर। वैसे ये कुछ ये नहीं होता कि रिएक्शन मैंने दी थी, सलमान का जो मैटर था उस पर मैंने रिएक्शन दी थी। दादा क्या आपको फिर से बिग बॉस हिंदी में देख सकते हैं आने वाले दिनों में, क्योंकि बिग बॉस हिंदी फिर से आने वाला है? मुझे ऐसा लगता है कि अगर एंडोमोल चाहता है, एंडोमोल ने मुझे मराठी से लेके हिंदी तक पहुंचा दिया, तो बुला लेंगे, वो शायद बुला लेंगे, क्योंकि ये तो हर वक्त होता रहता है। क्योंकि एक्शन किया था सलमान जी ने, तो उसके बाद में मैंने रिएक्शन दिया, और मैं रिएक्शन कभी भी बदलता नहीं हूँ और ना कभी बदलूंगा। पर अगर आप फिर से हिंदी बिग बॉस में आए, होस्ट तो सेम ही रहने वाले हैं, सलमान सर, तो क्या आप फिर से अगर जाओगे तो सलमान सर भी आपको फेस करना पड़ेगा? नहीं करेंगे ना, ये क्या है। ऐसे तो मुझे ऐसा लगता है कि भाई कुछ जो मिसअंडरस्टैंडिंग होती है, कंट्रोवर्सीज होती है, तो इंडस्ट्री में ही रहना है, और मुझे किसी की ज़रूरत नहीं है। मैं मेरी फिल्म लेके आ रहा हूँ, आपको तो पता ही है। अभी उसका हीरोइन का नाम मैं नहीं बताऊँगा, क्योंकि थोड़ा वो कवर करके रखेंगे, रैप करके रखेंगे। करूँगा, हिंदी फिल्म करूँगा मैं, लेकिन आज थोड़ा सा डर गया हूँ मैं। सुबह आपको पता होगा कि सब चैनल पे एक न्यूज़ चल रही है कि भाई ये चौथी लाट आने वाली है, ये वेव आने वाली है चौथी, तो थोड़ा सा सहम गया हूँ मैं। वो दिखाई भी देता है मुझे कि क्या भाई ये लोग हमको मरवा देंगे क्या? ये जो हमारी जो कि फर्स्ट से लेके हाथ तक जो लोग रहते हैं यहाँ, मर जाएंगे यार, काम नहीं मिलेगा किसी को। पता है 2 साल से हम क्वारंटाइन थे। अगर ये महाराष्ट्र शासन या ये कोई अपना पूरा जो केंद्र सरकार जो है, अगर ये वेव का नाटक करेगा ना, तो सब मर जाएंगे यार, खाना पीना नहीं मिलेगा किसी को। तो अभी के अभी इनको मैं चाहता हूँ आपके ज़रिए बताना कि पूरा प्री प्लान करिए कि चाहे अभी स्कूल बंद कर दो, क्यों बच्चे और कॉलेज के लड़के लड़कियाँ क्यों घूम रहे हैं यार? उनके वजह से बहुत क्या बोलते हैं कि उसको कि कॉज होता है, बहुत होता है ना, उसको बंद करके घर में भेजो, और ये कॉर्पोरेट वर्ल्ड और ये सरकारी कामकाज चलने दो यार। अगर ये फिर से लॉकडाउन हुआ ना, तो मर जाएंगे हम महाराष्ट्र वाले पूरे। बस Oh my God, I get very nostalgic because I was in Big Boss season 3, which was in the Hindi Big Boss, not the Marathi one, and it's very close to my heart because I was just a designer. People knew me as a good designer, but I became a household name, and it completely changed my life. I became like so famous that till today people remember me from Big Boss. I think so. It's a beautiful platform where people emote their emotions. It's a show of love. It's a show of hatred. So I enjoyed it. All the contestants of my season Big Boss, they're all of my friends. Cash is here. Cash was in season 1, I think so. She was in season 1, and I think so. It's a great show. How do you see a reality show? Because there are 2 reality shows, Big Boss, Marathi and Hindi. See, I know Tutti Marathi, so because I believe that Kishori Sahni was there in this in Marathi, because I saw a couple of episodes, but I think so. It's a very beautiful platform that every regional think they are having a Big Boss of every region. So I think it's very good for the channel. Recently, निशा जी की मैं बात करूँ, काफी एक अच्छा एग्जाम्पल लॉकअप पे उन्होंने सेट किया है। ये इज अ ग्रेट गेम। किस तरह का गेम आपको लगा लॉकअप? निशा मेरी फैमिली है, शी इज माई फ्रेंड, एंड मैं उसको जानता हूँ, उसने बहुत डिग्निफाइड से खेला है, ओके, एंड आई एम वेरी प्राउड ऑफ हर द वे शी प्ले, एंड भगवान करे शी शुड बी ऑलवेज हैप्पी. आई ओनली कैन विश हर वेरी गुड लक. इन अप्स एंड डाउन यू वर ऑलवेज देयर, काफी कुछ बातें हुई, सारी चर्चाओं में आप कहना चाहोगे? नहीं, ये मेरा पारिवारिक मैटर है, मैं इस प्लेटफॉर्म में नहीं बात करूँगा इसके बारे में. थैंक यू सो मच. कपड़े नहीं निकल रहा था, ये मेरे You can just go a little behind, one step behind. so very fine. Kashmir on आप यार. सेंटर पे आऊँ.
me to look for. I'll ask. It's a Big Boss reunion and you are always a great part of Big Boss. Yeah. So how do you see this reunion? Well, you guys don't know, but I'm a very big fan of Big Boss Marathi also. I've always watched it and always tweeted about it. And I really like Smita. Smita was the most beautiful, most classy and well-dressed person of season 1. आणि मला नाही वाटत की तुझ्यापेक्षा जास्ती कोणी चांगले कपडे घातले असतात सेकंड किंवा थर्ड. छान कपडे घातले, व्हेरी क्लासी यार. व्हेरी नाईस. Okay, so apart from language, what is the difference between you see the Big Boss Hindi and Marathi? I see no difference. I think both of them are really good. They are both equal. दोन्ही धाडक आहेत, कडक आहेत. त्यामुळे काही डिफरन्स नाही. ओन्ली एका जागेवरती सलमान सर आहेत, एका जागेवरती महेश सर. Actually, even what happens is emotions are same. Emotions are same. Moods are same. Correct. You're going to react the same. So it's no different. It's the same thing. Yeah. This is that. Tasks are also as good. yeah. In future, can we see you with Big Boss Marathi? Huh? You ask colors. I don't know. Okay, so मैम लॉकअप भी चल रहा है. किस तरह से आप फॉलो कर पा रहे हैं? अभी बिग बॉस की पार्टी में लॉकअप का कैसे बोलूं? मुझे अच्छा लग रहा है लॉकअप. कभी अभी आप कंट्रोवर्शियल मत पूछो. किस तरह का शो देख पा रहे हो? क्योंकि काफी ज़्यादा कंट्रोवर्सी हो रही है. नहीं, मुझे लगता है कि काफ़ी फेयर है, अच्छा है. It's have you been watching? Not much. Little bit here I've and been there. following it. मुझे सोशल एक्सपेरिमेंटल शोज बहुत पसंद है. Yeah. I mean, it's very interesting for sure. और उधर जो कॉन्टेस्टेंट्स है अभी 1 महीने के बाद उनको एक्चुअली लगने लगा कि वो जेल में. तो वो वैसे ही बिहेव कर रहे, तो इट्स अ सोशल एक्सपेरिमेंट वेरी सक्सेसफुल. मुझे पहले मुनावर पसंद था, लेकिन अभी मुझे लगता है पायल बहुत अच्छा था. हाल ही में निशांत की इलेक्शन हुई है. अच्छा, अभी इसके बारे में नहीं पूछते बिकॉज बिग बॉस की पार्टी. बिग बॉस का क्रैश क्या आएगा? फिर से बिग बॉस का नया सीजन आएगा. फिर से आपको देख पाएंगे बिग बॉस में. अब तो मैं ही अनएक्सपेक्टेड चीज़ें करती हूँ कि मुझे खुद को नहीं पता होता कि कल क्या घटेगा. तो अभी नेक्स्ट बिग बॉस सीजन में जाऊँगी नहीं जाऊँगी, लेकिन एक बात है कि अगर जाऊँगी तो पहले वाली कैश आप नहीं देखोगे जो थोड़ी सी सहमी हुई थी और थोड़ी क्लासी थी. अभी थोड़ा सा अलग ही नेचर है जो फर्स्ट सीजन में. थैंक यू. Okay, sir, Big Boss मराठी, Big Boss हिंदी यूनियन, reunion है. स्पीकर जी ने काफी कमाल की पार्टी रखी है. क्या कुछ कहना चाहते हैं? बहुत अच्छा लग रहा है. वैसे तो मैं सीज़न 2 में था, मराठी में फाइनल्स में था, और उसके बाद में पहला सीज़न भी मैंने फॉलो किया, तीसरा सीज़न भी मैंने फॉलो किया. तो एक क्या बोलते हैं, इट्स लाइक वी आर पार्ट ऑफ वन फैमिली जिसको हम लोग बोलते हैं. वैसे ये आज का इवेंट है और मैं बहुत कंग्रेचुलेट करना चाहूँगा सुशांत सिंह स्मिता गोलकर. उन्होंने इस ऐसे रियूनियन के बारे में सोचा और हम सब लोग यहाँ पे आज मिलेंगे, गप्पे हाँकेंगे, पुरानी बातें होंगी घर के अंदर की बाहर की, और बहुत अच्छा लगेगा. वी आर ऑल वेरी मच एक्साइटेड टू मीट ईच अदर वंस अगेन आफ्टर. बहुत सारे लोगों को तो मैं शायद 2-2.5 साल के बाद मिलूँगा आज, तो बहुत अच्छा लग रहा है. इट्स वेरी नाइस. अब मैं बात करता हूँ बिग बॉस मराठी की, तो जो TRP मिलती है, जो व्यूअरशिप मिलती है, काफ़ी सुधर चुकी है जब आप कंपेयर टू पास्ट बिग बॉस. तो किस तरह से आप देखते हो ये जो चेंज है लैंग्वेज में? बिग बॉस हिंदी तो हमेशा टॉप था, पर अब बिग बॉस मराठी कभी पीछे नहीं है. किस तरह का चेंज देखते हो सर? बिग बॉस के जो मेकर्स हैं, कलर्स मराठी, एंडेमोल शाइन, मैं उनके बारे में बोलना चाहूँगा. उन्होंने इतना ब्रिलियंट शो डिज़ाइन किया है कि ये हिंदी हो, मराठी हो, तेलुगु, तमिल, जिस लैंग्वेज में भी आप करोगे ये हिट ही होगा शो. मैं खुद वैसे फिल्म की बैकग्राउंड से आता हूँ. मेरी पहली फिल्म मैंने की रेगे, उसके बाद और 3-4 फिल्में मराठी में मैंने की थी. और जो रिकग्निशन मुझे इस शो ने दिया, मैं मानता हूँ कि वो मुझे मेरी पहली जो हिट फिल्म थी, सुपर हिट फिल्म थी, उससे भी नहीं मिला. तो आई थिंक ये बहुत अच्छा शो है. एक इमेज बिल्डिंग के लिए बहुत ही मैं मानूंगा कि बहुत उपयुक्त और बहुत करेक्ट शो है. और मुझे तो बहुत लोगों ने प्यार दिया घर में मराठी में. आणि मराठीत बोलायचं झालं तर बिग बॉस मराठी हा मला वाटतं महाराष्ट्रात टेलिव्हिजनवर
वरती चालणारा सगळ्यात पॉप्युलर आणि सगळ्यात मोठा शो आहे. त्यामुळे त्याच्यातनं जे तुम्हाला मिळतं आणि त्याच्यातनं एक संधी तुम्हाला मिळते, इमेज आपण म्हणूया माणूस म्हणून तुम्ही कसे आहात हे लोकांपर्यंत पोहोचवण्याची एक संधी मिळते. ती एक खूप छान संधी मला मिळाली, सगळ्यांनाच आम्हाला मिळाली आणि आम्हाला सगळ्यांनाच त्याचा खूप फायदा झाला. सो कॉंग्रॅच्युलेशन्स टू एंडेमोल शाईन, कलर्स मराठी आणि सगळे बिग बॉस सेमचे मित्र मेकर्स. इकडे बिचुकले पण आहेत, मला आता दिसले पण. थँक्यू सो मच. Yeah, Adish. Just have your Insta handle. Mine? Yeah. Akshay. AKSHAY. S. S. Wakmani. WAGHM. WW. WA. WAGHMAR. MAR. It's a yours. Sorry? Your Insta handle. विकास 24 Vikas 20. अंडरस्कोर. पार्टी है बिग बॉस का खिताब आपने जीता है, किस तरह की शाम आप देखते हो? जीतते जीतते रह गए. जीते, हाँ मैं तो एक्चुअली जीता इन्होंने, बिग बॉस जीत के विनर ये है, लेकिन टू शेयर द एक्सपीरियंस इट वाज वेरी नाइस और बहुत ही मज़ा आया. हम चारों ने बहुत ज़्यादा मज़ा किया और ये सीज़न 3 जो था वो सबसे अलग इसलिए था क्योंकि हम सब की दोस्ती जो थी वो बहुत यूनिक थी और इसलिए सीज़न 3 इतना ज़्यादा बड़ा हिट हुआ. सर आप क्या कहना चाहोगे? बिग बॉस खिताब आपके नाम है, किस तरह की फीलिंग होती है और दोस्तों से जब मिलते हैं तो क्या कुछ बातें होती है सर ऐसी पार्टियों में मिलती है? वैसे तो ये मेरी पहली पार्टी है, मैं ज़्यादा पार्टी पसंद नहीं हूँ, लेकिन आज मैं शूट करके आया कि मुझे करना है, आज सबको मिलना है. क्योंकि जैसे सीज़न 3 में 17 पावरफुल पीपल थे, वैसे सीज़न 1 और सीज़न 2 दोनों सीज़न के सब लोग आने वाले हैं, सब बिग बॉस के पावरफुल पीपल. सो उनके साथ मिलना था, उनके साथ बातचीत करनी थी, उनका एक्सपीरियंस कैसा था. और मेरा एक्सपीरियंस बहुत बढ़िया था. मैं बहुत हैप्पी हूँ कि मैं बिग बॉस सीज़न का एक पार्ट था और एक विनर बन गया. एंड मज़ा आ रहा है. आई एम वेरी हैप्पी. और अगर आपको चांस मिला, जैसे कि आप देखते हैं नॉर्मली बिग बॉस के कंटेस्टेंट हो गए, मराठी कंटेस्टेंट हो गए, विनर हो गए और बिग बॉस में जरूर जाते हैं. अगर आपको चांस मिला तो क्या आप जाओगे सर? मैं हमेशा बोलतो, मराठीत बोलतो की माझ्या प्रेक्षक मायबापांना जे हवं आहे ते मला करायचं. मतलब मेरे प्रेक्षकों को, जो मेरे फैंस हैं, उनको जो चाहिए वो मैं करने के लिए हमेशा तत्पर रहता हूँ. और अगर उनकी इजाज़त है, उनको लगता है कि मैं उधर जा सकता हूँ, तो यस मैं जाऊँगा. मुझे अच्छा लगेगा जाने का. सर हाउ डू यू सी सलमान सर एज अ होस्ट? क्या आपको कभी बड़े स्क्रीन पे आप सलमान सर को अंदर से देख सकते हो? क्या हम आपको देख सकते हो अंदर रूम में आप सलमान सर को देखते हो? सलमान सर का मतलब एज अ होस्ट मैं जज करने वाला मतलब कौन होता हो, क्योंकि ही इज़ अ लेजेंड एक्चुअली अदरवाइज ऑल्सो एंड बिग बॉस एज अ होस्ट ऑल्सो. बिकॉज मराठी शो जो है वो महेश सर होस्ट करते हैं और उतना ही पावरफुली करते हैं जितना सलमान सर करते हैं. सो रिस्पेक्ट तो बहुत ज़्यादा है. और इस सीज़न में तो वो आने वाले थे हमको मिलने के लिए शायद, लेकिन यहाँ पे कुछ गड़बड़ होगी इसलिए वो आ नहीं पाए, इसलिए हम उसको फेस टू फेस देख नहीं पाए. लेकिन स्क्रीन पे जो भी देखा और इन्होंने आई एम लकी फॉर दैट कि इन्होंने इस टाइम सलमान ने जो मेरा नाम लिया था कि जब नॉमिनेशन का टास्क था उसमें सबसे पहला सेफ होने वाला नाम मेरा था और वो सलमान सर ने खुद लिया था. तो उसके लिए आई एम फीलिंग लकी और ही इज़ अ लेजेंड. क्या कुछ कहना चाहोगे आज की शाम की मैं बात करूँ? जी आज की शाम की मैं बात करूँ, मुझे ज़्यादा आज की एक्चुअली शाम ही कुछ अलग है. द थिंग इज़ कि आप जब टीवी पे देखते हो तो बिग बॉस आपको सिर्फ 17 लोग देखते हैं, लेकिन अभी आपको 50 से ज़्यादा सेलिब्रिटी यहाँ पे दिखेंगे. सो दिस इज़ अ थिंग कि आप इज़ अ फैमिली, बिग बॉस इज़ अ फैमिली. जब फैमिली का रीयूनियन होता है तो आपको बहुत मज़ा आता है. सो आई एम जस्ट हैविंग अ फन एंड मीटिंग एवरीवन एंड हैविंग अ चैट विद देम. सर दोस्तों से मिलते, विनर से मिलते तो पहली क्या बात होती है विनर से? यार मैं सच कहूँ तो मैं इसको विनर की तरह देखता नहीं हूँ, क्योंकि ये मेरा दोस्त है पहले. तो विनर और हमें बहुत खुशी है कि हमारा एक दोस्त ही जो हमारा दोस्त वहाँ बना वो विनर हो गया. थोड़ा बैलेंस करायला पडेल. Ma'am, what do you want to say? All the winners are here, all Yes. the players are here. So what do you want to say? Oh, they've been. This season was really very different. As every season has been different, this was really exciting. This, I think, one of the seasons which had very high TRPs, and these guys made it. I think this is one of my favorite team. I mean, groups पढ़ते हैं यहाँ पे, which is very obvious. But this is my favorite group that is here today, and very happy that they're here. Thank you so much.
Thank you. आज की शाम तो धमाल कर ही जाना है बिकॉज बहुत टाइम के बाद इतने लोग सारे सेलिब्रिटीज बिग बॉस के साथ में, बिकॉज थर्ड का तो मैं गई नहीं थी और मैंने देखे लोगों को, दे आर वेरी एनर्जेटिक एंड दे वेरी फन लविंग एंड डांसिंग। सो आई एम श्योर दैट बहुत सारा मस्ती और डांसिंग होने वाला है। और स्मिता की पार्टी हमेशा रॉकिंग होती है बिकॉज जो हमने लास्ट टाइम किया था 2019 में, राइट? या सो दैट वाज द परफेक्ट पार्टी आई हैड। आई वाज वेरी हाई बट आई वाज हैविंग अ गुड टाइम। Okay, I have lot of memories. I think Shiv is very important for me. I think Smita, then रेशमा ताई भी आई थी, उन्होंने भी मुझे बहुत मोटिवेट, बिकॉज एक टाइम आ गया था कि जहाँ पे मैं अपने आप को खो बैठी थी और मुझे ऐसा इमोशनली मैं ब्रेक डाउन हो गई थी। सो वो चीज़ मुझे बहुत अच्छी, लाइक दिस होल मेमोरी, आई थिंक एक भी मेमोरी मैं भूल नहीं सकती हूँ बिग बॉस के बारे में। एंड इट मेक्स मी, आई डोंट नो, मैं अभी भी गूज़बम्स आ रहे हैं और इट इज़ द बेस्ट थिंग एवर हैपेंड इन माई लाइफ। बिग बॉस की मराठी की जर्नी जिस तरह से लोगों ने देखी, लोगों ने काफ़ी पसंद किया और फिर लोगों की डिमांड आई कि आप हिंदी बिग बॉस कीजिए। काफ़ी सालों से चर्चा चलती आ रही, बिग बॉस का नया सीजन भी आ रहा है, क्या आपको दिख पाएगी? इसमें मैं यही बोलूँगी वो चैनल पे डिपेंड होता है। ऑब्वियसली बीइंग एन इंडिविजुअल आई वुड ऑलवेज वांट कि मेरी तरफ से मैं क्या हूँ, कैसी हूँ, मैंने अब मेरी अपब्रिंगिंग कैसी है, मैं कैसे दोस्तों के साथ बैठती हूँ, उठती हूँ, और ये इंडस्ट्री में जिसकी बैकग्राउंड इंडस्ट्री में कुछ नहीं है, उसने अपने आप को यहाँ पे खड़ा कैसे रखा है, मुझे ये अच्छा लगेगा अपने बारे में बताना। और लोगों के साथ मैं कैसे डील करती हूँ, कैसे बातें करती हूँ और अपनी लाइफ में, बिकॉज आई गो थ्रू लॉट ऑफ थिंग्स एवरी डे एवरी मिनट इन माई लाइफ। तो मेरे लिए वो बहुत एक्सपीरियंस अमेजिंग होता है, बिकॉज आई लव टू बी लाइक दैट। सो हाँ, अगर आया तो ऑब्वियसली आई विल बी इन फॉर इट, बट आई डोंट थिंक सो, बिकॉज मुझे बिग बॉस ऑलरेडी खेलने आता है, दे विल नॉट टेक द सेम आर्टिस्ट, आई डोंट नो। लॉकअप की मैं चर्चा करूँ, लॉकअप तो सबको पता है, लॉकअप एक शो भी है, यू आर ऑल्सो इन अ रियल लॉकअप। तो हम आपको जो रियलिटी शो का लॉकअप है उसमें कब देख पाएंगे? सो आपको ये पता है मैं लॉकअप में थी। ओके, सो आई डोंट केयर, आई वॉज इन अ लॉकअप और एवर, वो रिजल्ट मिल जाएगा लोगों को, आई डोंट केयर, बिकॉज आई नो आई एम नॉट रॉन्ग एंड आई एम ट्रू टू माई सेल्फ। अगर मैं अपने आप से सच हूँ तो मुझे कोई नहीं हिला सकता। सो और जो लॉकअप चल रहा है, इट इज़ अ वेरी इंटरेस्टिंग एंड ड्रामेदार लॉकअप है, जो कि मेरे भी थी तब, मेरे लाइफ में भी वो एक लॉकअप इसलिए मिले, बहुत ड्रामेदार बन चुका था। सो आई थिंक मुझे रियलिटी लॉकअप, जो इसका लॉकअप है, मुझे मुनावर ज़्यादा पसंद है एंड आई एम लाइकिंग जो हिसाब से उसका क्रिएटिव हेड जो चीज़ें कर रहा है, उसको लिटरली फन में भी ले रहा है, क्योंकि लॉकअप में यू कैन हैव फन, यू कैन डांस, यू कैन डू लॉट ऑफ थिंग्स। So I have also done few things in my real lockup, so I know कि what is Munawar doing is doing the best. I don't know, my best wishes only to Munawar. So when you were locked up, so there were so many friends, fans who stood by you, supported you. उन सारे fans को क्या कुछ कहना चाहोगे? That is no words will not explain that. That's just this.
it's my eyes, you will understand. I'm giving my truth and my deepest feeling to all my fans because I am standing right back with you. It's only because of you. Would you like to clarify things? My actions, I have already mentioned, action will talk, words will not. I don't want to share right now. There is a lot of coming, but you will see me soon. यार बिग बॉस वालों की पार्टी है तो ये तो बहुत इंटरेस्टेड होता है सुनने में, बट आई एम नॉट टेकिंग इट एज अ बिग बॉस वाली पार्टी। आई जस्ट चिल अराउंड दैट्स इट यार। कोई ऐसे दो जिससे बोलने के लिए काफ़ी एक्साइटेड हो बिकॉज ये हिंदी मराठी काफ़ी जन है यहाँ पे। ओके यार मराठी बिग बॉस में आई नो आदिश, हीना, दैट्स इट, और किसी को ज़्यादा नहीं जानता, बट अगर कोई हिंदी वाला आता तो लेट्स सी में भी किसी को जानता। शो की मैं बात करूँ जिस तरह आपको प्यार मिला है शो में, और क्या कुछ कहना चाहोगे अपने फैंस को? मज़ा आ रहा है यार करने में, कुछ नई चीज़ करने को मिल रही है, आगे कुछ डिफरेंट चीज़ें आने वाली हैं जो मुझे एज एन एक्टर करने में बहुत मज़ा आने वाला है, तो मैं एक्साइटेड फॉर दैट। And how do you see Reem and Zayn as of now? रीम एंड ज़ैन यार, मुझे पहले मेरे थॉट्स ऐसे थे कि मेरे लिए बहुत प्रॉब्लम होगी, बट सरप्राइजिंगली बहुत अच्छा बॉन्ड बन गया एंड आई एम वेरी कंफर्टेबल विद बोथ ऑफ देम एंड दे आर वेरी वेलकमिंग एंड वेरी स्वीट विद एवरीबडी। एक्चुअली हम तीनों के साथ में शूट करने में बहुत मज़ा आया। And if you want to pick a best thing about them as a co-star, as a friend, what will be there? यार अबाउट ज़ैन, ही इज़ वेरी डाउन टू अर्थ एंड ही इज़ वेरी, ही विल गिव यू दैट वाइब कि आप एक कंफर्टेबल हो जाओगे उस स्पेस। सो दैट्स द बेस्ट थिंग अबाउट इट। थैंक यू। हिंदी में कहना है या मराठी में कहना है? हिंदी में कहना है। डेफिनेटली बाकायदा शानदार पार्टी है, और मैं तो ऐसे ही जैसे बिग बॉस में फर्स्ट सीज़न में, मराठी फर्स्ट सीज़न में था, जैसा सिंपल था वैसे आज भी हूँ। अपना काम है लोगों को हंसाना और कॉमेडी करके लोगों के होठे पे मुस्कान लाना। तो बिग बॉस के घर में मुझे उसी के लिए भेजा गया था। मुझे पूछा गया था कि आप घर में जाके क्या करोगे, तो मैंने बोला था कि घर को हंसता खेलता रखूँगा। तो वैसे मैंने किया, वहाँ पे बहुत मज़ा आया, फाइट भी बहुत हुआ। हालांकि हर बिग बॉस में होता है, फाइट होता है, हंसी मजाक चलता है, इमोशंस होते हैं, सब कुछ होता है, ड्रामा होता है। जैसे हमारे बिग बॉस में था फर्स्ट सीज़न में, और हिंदी में भी चलता है। तो बहुत मज़ा आया फर्स्ट सीज़न में, बाकी सीज़न भी मैंने फॉलो किए, और आज ये पार्टी में बहुत सारे लोग आए। और मैं थैंक्स कहना चाहूँगा स्मिता को उनकर मेरे साथ फर्स्ट बिग बॉस में थी। सुशांत था मेरा, सुशांत शिला, हम लोग की काफ़ी अच्छी दोस्ती रही वहाँ पे, और यहाँ पे आया, आप सबसे मिला हूँ। सो थैंक यू, बहुत अच्छा लगा। थैंक यू सो मच। Obviously, we all were looking forward to it because पिछले 2 सालों से हम मिले नहीं थे, एंड स्मिता की ये पार्टी, जब भी उसे ये पार्टी थ्रो करनी होती है, शी ऑलवेज फर्स्ट आस्क अस कि तुम लोगों की डेट्स है क्या, मिलना है एंड ऑल दैट। ऑनेस्टली स्पीकिंग, ये पार्टी हमारी पिछले साल ही होने वाली थी, जब बिग बॉस मराठी सीजन 2-3 का ग्रैंड फिनाले होने वाला था, बट अनफॉर्चुनेटली वो हो नहीं पाया। सो फाइनली आज वो पार्टी हो रही है। मैं आते वक्त रास्ते में इतनी ज़्यादा खुश थी, मैं लिटरली गाड़ी में अकेले ही म्यूज़िक लगा के डांस कर रही थी, बिकॉज आई वॉज सुपर डुपर एक्साइटेड कि मैं सबसे मिलूँगी इतने दिनों बाद। आते ही मुझे मेरे
बॉस के कंटेस्टेंट्स मिलने लगे। हालांकि बीच बीच में मैं उन सब से मिलती रहती हूँ, सबके टच में रहती हूँ। ऐसा नहीं है कि मिले ही नहीं है कई सालों से। ऑफकोर्स मिलते जुलते हैं, बट एक साथ मिलना वो हो नहीं पाता। एंड थैंक्स टू स्मिता कि बिकॉज ऑफ स्मिता ये इनिशिएटिव हर साल लेती है, वी आर एबल टू कैच इट। सो आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू हैव सो मच फन। मैं सच में इतना ज़्यादा मिस कर रही थी सबको एक साथ मिलना, एंड टुडे वी ऑल आर हियर, सो आई एम सुपर हैप्पी। कोई ऐसी मेमोरी, एक मेमोरी हो तो बताऊँ? ये तो मेमोरीज़ का मतलब पूरा अफसाना है, और इस अफसाने का अगर एक किस्सा भी अगर बयां करने जाओ तो दूसरे किस्से के साथ इनजस्टिस हो जाएगा। हमारी पूरी जर्नी ही इतनी शानदार रही है सबकी, फिर वो चाहे मेरे सीज़न मराठी सीज़न की हो, बिग बॉस मराठी सीज़न 1 या बिग बॉस सीज़न 12 जिसमें मैं थी। और देखिए ना कैसा ये एक कॉम्बिनेशन है कि मेरे मराठी सीज़न के जो दोस्त थे, मैं और मेरे दूसरे कुछ कॉमन फ्रेंड्स की वजह से मेरे मराठी सीज़न के और हिंदी सीज़न के फ्रेंड्स का ही एक ग्रुप बन गया, और देयर इज़ नो लैंग्वेज बैरियर बिटवीन अस। जैसे श्रीशंत मेरा बहुत अच्छा दोस्त है, वैसे ही अब वो स्मिता का भी बहुत अच्छा दोस्त है, और जसलीन मेरी बहुत अच्छी दोस्त है जो सीज़न 12 में मेरे साथ थी, वो अब स्मिता की भी दोस्त है, रोशनी। सो मेरे ये दोनों सीज़न के लोग एक साथ इकट्ठा इस पार्टी में जब आते हैं तो बहुत अच्छा लगता है। मुझे ऐसा लगता है कि बिग बॉस इज़ डेफिनेटली अ वेरी वेरी ह्यूज पार्ट ऑफ एवरीवन्स लाइफ। मतलब जो भी हम कंटेस्टेंट रह चुके हैं बिग बॉस में, वो जर्नी हम जी चुके हैं, हम सबके लिए बिग बॉस बहुत ज़्यादा स्पेशल है। और वो स्पेशल इस वजह से है कि उसमें जो भी लोग थे हमसे जुड़े हुए, फिर चाहे वो कंटेस्टेंट हो या हमारे कास्ट एंड क्रू हो जो टेक्निकल सपोर्ट कर रहे थे वो लोग हो, वो सारे ही इस जर्नी का हिस्सा है और हमारी सारी यादों का हिस्सा है। सो वी आर, आई कैन से कि हमारा एक दिल से कनेक्शन है एक दूसरे के साथ, एंड वो कनेक्शन हम बरकरार रखने की पूरी कोशिश करते हैं। प्लीज शो मोर लव टू इट, एंड बहुत जल्दी बहुत धमाकेदार सरप्राइजेस आने वाले, बट आई एम नॉट
allowed to say now. I have to wait. Okay, so your journey was very small. Yes. So if you get a chance to go inside the house one more time, so will you go? Why not? I'm grateful to Big Boss. Like Big Boss की वजह से मैं यहाँ हूँ, मैं बॉम्बे में हूँ, आप सबके साथ बात कर पाती हूँ. अगर वापस थोड़े दिनों के लिए जाना होगा तो मैं जाऊँगी. पूरे टाइम के लिए I don't think so I can stay. You know, I'm someone who is not very controversial. I'm someone who doesn't like to fight and all ज़्यादा. तो वो घर में ना माहौल ऐसे बन जाते हैं कि मैं तो पागल हो जाऊँगी. है ना? थोड़े टाइम के लिए जाना होगा. I would love to. Why not? Welcome. Bye bye. Bus, it's our pleasure always, like I told last time also, that to host such great people and your team, especially you are there, तो फिर और क्या चाहिए? Keep coming, it's our place. Get your BPM right and keep coming over here. Thanks to our media people, they are always here for us. It was a good coverage for launch event also. It has a good buzz. Hopefully we create more buzz and keep rocking and keep partying. हमारे शेफ्स ने कुछ स्पेशल फूड बनाया है हमारे सारे कंटेस्टेंट्स और सारे एक्स बिग बॉस के लिए, सो दैट दे फील गुड अबाउट इट एंड दे कीप कमिंग ओवर हियर वंस अगेन. थैंक यू वेरी मच. थैंक यू. हाँ जी, वेरी सून वी विल कीप अपडेटिंग अबाउट इट ऑल्सो. चलो, थैंक यू. बाय. वेरी एक्साइटेड अबाउट आज बिकॉज रीयूनियन काफ़ी प्लान होते हैं लेकिन होता नहीं है, बट आज हुआ है. आई एम सीइंग अ फ्यू नोन फेसेस ओवर हियर, तो काफ़ी एक्साइटेड हूँ. जिस तरह का पेंडेमिक था, देयर आर सो मेनी थिंग्स हैपेंड इन द पास्ट, तो अब एक फ्रेश स्टार्ट मिल रहा है लोगों को. क्या कुछ अपकमिंग प्रोजेक्ट है आपकी तरफ? मेरे तो अपकमिंग प्रोजेक्ट्स काफ़ी सारे हैं. आई डिड अ वीडियो, आई हैव डन अ कपल ऑफ वीडियोज़ and I'm touring with Mika Dada. I've sung for Orko Dada and बंगाली फिल्म इंडस्ट्री में मैंने कदम रख लिया है. मैंने बंगाली प्लेबैक भी किया है. सो या देयर इज़ अ लॉट ऑफ गुड वर्क दैट्स ऑलरेडी बिन डन, सिर्फ रिलीज़ की देरी है. एंड और भी बहुत कुछ होगा. सलमान सर के साथ द बेस्ट मेमोरीज वी यूज्ड टू हैव द वीकेंड का वार एपिसोड्स. एंड उसके अलावा आफ्टर पार्टी जो थी बिग बॉस की, वो भी मुझे बहुत अच्छी लगी थी बिकॉज सलमान सर के साथ पर्सनली इंटरेक्ट करने का मौका मिला. सो आई वाज वेरी हैप्पी अबाउट दैट. एंड आई थिंक एवरी मोमेंट विद सलमान सर इज अ फेवरेट मोमेंट बिकॉज ही इज सलमान सर. सो I'm getting a lot of good response. My fans are really happy and they were very happy that I went off social media also. And now that I'm back, they are really excited because काफ़ी सारे खबरें आ चुकी है already regarding my songs and all. Before I could say anything, my fans found out and news people also got to know. I'm doing a song with Assis Kaur also and so मतलब काफ़ी सारी अच्छी चीज़ें हो रही है. बस मैं बोलूँगा नहीं चाहता अभी, मेरा काम बोले तो आई थिंक दैट्स बेटर. गुड टू सी यू.
आज आमच्या स्मिताची बिग बॉसची पार्टी आणि स्मिता आमच्या बिग बॉस नंबर 1ला पार्टी दिली. 2 झाल्यावर 2 पहिली आणि दुसऱ्याला पार्टी दिली. आज पहिली, दुसरी आणि तिसरी अशी मिळून तिघा बिग बॉस सीझनची 3 सीझनची आज मस्त पार्टी आहे. एन्जॉय करणार आहोत, धमाल करणार आहोत. मैडम एक सवाल है. बोलो बोलो, मेरी आवाज़ ऊंची है. पवित्र रिश्ता 2 आया, पवित्र रिश्ता 1. उसका क्या संबंध है? नहीं, आप कमाल की परफॉर्मेंस, किस तरह से आप पवित्र रिश्ता 2 को देखते हो? 2 को देखने का क्या, पवित्र रिश्ता मेरे दिल के करीब की सीरियल थी, अच्छी हुई थी, सबको अच्छी लगी, पूरे संसार को, नॉट ओनली मुंबई, पूरी दुनिया को अच्छी लगी थी. अभी जो क्या बोलते हैं उसको, दूसरा क्या आया, वेब सीरीज आई. मैंने पूरी देखी नहीं, मैंने काम किया है, लेकिन मुझे जो मज़ा आया था सीरियल करने में, उतना मज़ा इधर नहीं आया. क्या आपने किसी को मिस किया उस सीजन में? आप बार बार मत पूछो, फिर मेरा इधर कुछ होता है. आपको मालूम है, फिर क्यों पूछते हो? अजय भी नहीं थे, सुशांत भी बुरा लगा. चल एक्साइटेड है. 3 सीजन के लोग एक साथ आ रहे हैं. एक्चुअली आप सोच सकते हो कि एक बिग बॉस घर में 15 लोग कितनी मस्ती करते हैं. आज इनटू 3 टाइम्स होने वाला है, तो बहुत धमाल होने वाला है. सो वी आर वेरी हैप्पी एंड सुपर एक्साइटेड. बिग बॉसची काही मेमरी, खूप साऱ्या मेमरीज आहेत. अख्खा बिग बॉस मेमरेबल आहे. आम्ही तो करायचा प्रयत्न केला आणि मी स्मिताला खरंच थँक्यू म्हणते. इनफॅक्ट मगासपासून मी तिला शोधते, कुठे मला सापडत नाही आहे ती. तर खरंच थँक्यू म्हणायचं आहे तिला, कारण एवढी लोक एकत्र येणं नॉट अ पॉसिबल, आणि ते खरंच ती दरवर्षी करते. खूप छान वाटतंय. कोई ऐसा डिफरेंस बिग बॉस हिंदी और मराठी में क्या डिफरेंस क्या लगता है? लैंग्वेज को छोड़िए. मुझे एक चीज़ लगती है कि मराठी बिग बॉस बहुत ही कनेक्टेड है, बहुत ही फैमिली ओरिएंटेड है. ऐसा लगता है कि इमोशंस को सबसे नंबर 1 प्रायोरिटी दिया जाता है, और हिंदी में वो थोड़ा कम है, लेकिन मराठी में वो ज़्यादा है. As now the kind of response Marathi Big Boss is getting, Hindi Big Boss was always on the top. Now the Marathi Big Boss is also making a tough competition. Yes. What message would you like to give them? फैंस, you want to say? नहीं बोल दो. फैंस को तो मैं यही कहूँगी कि हर रियलिटी शो अपने आप में एक दिलचस्प एक शो है, और मराठी बिग बॉस सच में म्हणजे तो एवढा वरती चालला आहे की हिंदीला पण खूप वेळा त्याने बीट केलं आहे. आमचे खूप सारे वीकेंडचे असे होते एपिसोड ज्यांनी हिंदीला पण बीट केलं आहे. तर ऑडियन्स फक्त आणि फक्त एन्जॉय करणार आहे, आणि आय एम शुअर नेक्स्ट सीझन मराठीचा अजून टफ होणार आहे. वी हॅव सेट दॅट बेंचमार्क. हां, मला तर जायला खरंच आवडेल, कारण कसं आहे, आतमध्ये गेल्यानंतर खरंच विसरून गेलो. जसं हिंदी बिग बॉस आणि मराठी बिग बॉसमध्ये काय वेगळेपण आहे असं जर मला विचारलं तर मी खरं सांगेन, जसं ही म्हणाली की आपण काहीतरी ठरवून आलोय म्हणून खेळायचं असं नाही होते. प्रॉपर आपण जसे आहोत तसेच प्रेझेंट होतो. सच्चेपणा, खरेपणा असतो मराठी ऑडियन्सला, तेच भावतं. आणि मला वाटतं हिंदी ऑडियन्स पण खूप सारं आहे ज्यांनी मराठी बिग बॉस बघितलं, तर हेच वेगळेपण आहे मराठी बिग बॉस. आणि
चौथ्या सीझनमध्ये जायला तर खूप मजा येणार आहे, कारण जे राहून गेलेलं आहे ना काही काही गोष्टी त्या तिथे जाऊन धमाल करायची आहे, ते आवडेल आम्हाला. मैं भाग रही हूँ, मुझे चलेगा. मैं भाग रही हूँ. वो फुल ऑन एंटरटेनमेंट होगा और क्या होगा. अच्छा, मुझे चलेगा. मैं तो ये पहली बार सुन रही हूँ, अगर वो बना रहे हैं तो अभी अनाउंस किया है, तो उनको ऑल द बेस्ट. और आप उसका हिस्सा बनना चाहोगे तो आप ज़रूर बन सकते हो. हाँ, मैं इस तरह से हिस्सा बनना चाहूँगी कि उनको मैं मिलूंगी और पहले ये पूछूंगी कि आपके मूवी का नाम क्या है. तो ये बहुत बड़ी बात है ना, तभी तो देखेंगे ना हमारे ऑडियंस जो है. तो अभी जा रही हूँ मैं, चलो. थैंक यू सो मच. बहुत एक्साइटेड हूँ. मैं तो वेट कर रहा था कि कब यहाँ के लोग आगे जाएं, मैं आऊँ और ऊपर जाऊँ, पार्टी एंजॉय करूँ. बेसिकली ये बिग बॉस का 3rd सीज़न हो चुका है. मैं 2nd सीज़न में कंटेस्टेंट था. मैं अंदर कुछ 9 हफ्ते रहा, बट जो अंदर का जो एक्सपीरियंस है उससे काफ़ी, जितना मैं देखा, मैंने जितने लोगों को पूछा है, उतने लोगों से पता चला कि लाइफ बहुत चेंज हो जाती है. और लाइफ चेंज होने के बाद में मतलब आप देख लो ना कि घर के अंदर जो हम लोग कुत्ते बिल्ली के झगड़े किया करते थे, आज हम लोग पार्टी कर रहे हैं, हम लोग साथ में मज़े कर रहे हैं. कि एक अलग बात है. अंदर की दुनिया अलग होती है, बाहर की दुनिया अलग होती है. जैसे हम लोग अंदर जाने के लिए एक्साइटेड होते हैं, अंदर जाने के बाद एक 10 दिन के बाद हमें लगता है यार कहाँ अगर फंस गया यार, अब कब बाहर निकले. लेकिन जैसे जैसे दिन कम होते जाते हैं ऐसे लगता है यार ये जर्नी जल्दी खत्म ना हो, हम लोग और अंदर रहें. लेकिन फिर बाहर आना होता है, जैसे जैसे एलिमिनेट होते हैं, विनर होता है, डिस्कस. बाहर आने के बाद में चीज़ें फिर से अलग हो जाती हैं. तो जितने भी गिले शिकवे होते हैं सब मिट जाते हैं, सब एक दूसरे के गले में गले डाल के एंजॉय करते हैं, पार्टी करते हैं. सो वही आज एक दिन है. और 2nd सीज़न के बाद भी एक पार्टी स्मिता ने रखी थी, इस बार भी उसने रखी है. सो वी आर हैविंग फन एंड आई एम वेरी मच एक्साइटेड टू मीट यू ऑल गाइज एंड टू मीट अदर पीपल ऑल्सो. सॉरी जी बिल्कुल. अगर मैं चाहूँ, मतलब मैं तो चाहता हूँ कि मैं 4th सीज़न में आऊँ मराठी, या तो फिर हिंदी के नेक्स्ट सीज़न में भी आऊँ. लेकिन ये बिग बॉस की इच्छा है. तो आपका अगर शायद कोई इंटरव्यू देख रहा है बिग बॉस के जो कंटेस्टेंट सिलेक्ट करता है, वो बॉस बिग बॉस 4th सीज़न में मैं आने के लिए तैयार हूँ, ले लो भाई. थैंक यू सो मच. थैंक यू. एंजॉय गाइस, एंजॉय.
and it is and very importantly आपण जिकडे इथे कुठे फिरत असतो बऱ्याच वेळा आणि ते जमिनीवरती आणणं पण झालेलं आहे. वी बीन देअर, वी गॉट ग्राउंडेड अँड दिस होल पार्टी इज अगेन आपण कधीतरी वी गेट कॅरिड अवे इन अ होल जर्नी अगेन, बट दिस लिटल पार्टी इज reminding you of your highs, lows and everything and your groundness and how we need to be grounded as well. Just na bolta, I want to tell everybody thank you so much for being here, and first of all I would also like to thank BPM for hosting this party, and thank you so much. They've been important partners. And then we have a picture craft, Parul Chawla who's here, and without her any of my men is highly impossible. It's not possible without her for me to handle anything. So, and we have a new partner.